ان کے اوپر بدتمیزی کرو، بد نظمی کرو، جو مرضی اپنے سے باتیں ایڈ کر کے، اپنی تحویلیں پیش کر کے جیسے مرضی ادھر بیٹھ کے کرو، کوئی روکنے والا نہیں تمہیں. جیسے وہ دوسری براڈوں پہ کہتے تھے نا، یہ للکارے مارے تھے کہ وہ کیا شروع کس نے کیا ہے؟ ذرا بتا تو دو. میں الفاظ بتا دوں اگر آپ اجازت دیں مجھے. جی جی صاحب تو جی جی یہ اپنا سرکار صاحب بھی سن رہے تھے صبح کے، میں بھی نیچے میسج سن رہا تھا سرکار بھی. چنگیز صاحب آپ بتائیے کیا ہوا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طاہر صاحب خیریت ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی یار بتائیے. جی اگر مجھے پیر اسکانی صاحب بات یہ ہے، سوری میں معذرت کے ساتھ ابھی میں سو کے اٹھا ہی ہوں تو سن رہا تھا، تو وہ ٹپیکل جو ہمارے قائد ہمارے مرزا صاحب کے بارے میں اور جماعت کے بارے میں جس طرح ٹھٹھا مذاق، بیہودہ بازاری، عامیانہ، جاہلانہ اور مکارانہ چالیں چلی جاتی ہیں، اور وہ اپنی جیسے وحشت اور گندگی اپنا برہنہ یا ننگا ڈانس کرتی ہے، رقص کرتی ہے، وہی منظر تھا. اور وہ جو میرا خیال اس میں واضح ایک خواہش کا اظہار نظر آتا ہے کہ پیر اسکانی صاحب کے پاس جو احمدی احباب آ کے بیٹھتے ہیں تو کیوں بیٹھتے ہیں؟ ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اتنی گندگی پھیلا دو، اتنا گند پھیلا دو کہ وہ اس کے تعفن سے کوئی قریب نہ آ سکے. یہ مجھے ایک خواہش لگتی ہے، کیونکہ احمدی لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ آپ ایک علمی ماحول میں ایک مہذب گفتگو، منصفانہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ کھینچے چلے جاتے ہیں. لیکن کوئی بھی اپنے قائد کے بارے میں، اپنے قبیلے کے بارے میں، اپنی کمیونٹی کے بارے میں اس طرح کی گندی غلاظت. اور بات یہ ہے کہ جب پینل میں جو اشخاص موجود تھے، مجھے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ موجود ہوں گے تو جہاں بھی ہوں گے وہ ایسا منظر ہی پیش کریں گے. جس طرح آگ ہو، نمرود ہو، اولاد ابراہیم ہو، تو پھر وہ انگریڈینٹ ایسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کسی کا پھر امتحان ہی ہونا ہے. تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں یہ براڈ بالکل وہی منظرنامہ پیش کرتی ہے جو آپ کی ڈارلنگ یا دوسرے لوگوں کے یہاں ایک بدتمیزی احمدیت یا توہین احمدیت کا پروگرام چلتا ہے. اس کا نام جو مرضی دے لیں، تو یہ منظرنامہ بھی اس سے کچھ کم نہیں ہوتا. میری تو کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ نہ ہوں تو میں براڈ پر نہ آؤں، اور اگر آپ کنٹرول میں نہیں ہیں تو دیکھیں اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن گالی گلوچ، گندی بیہودہ باتیں کر کے تو پھر وہی منظرنامہ پیش کرنا ہو تو اس میں تو واضح مجھے تو یہ شکل نظر آتی ہے کہ جو احمدی ہیں جو کسی ایک براڈ میں جانا وہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی وہ منظرنامہ پیش کر دیا جائے کہ اس میں فرق نہ رہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. میں معذرت خواہ ہوں، کچھ بزی تھا آج بزی تھا، صبح سے فجر کے بعد سے بزی تھا. انشاءاللہ میں توجہ دوں گا، دیکھوں گا. ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ میں ہونے نہیں دوں گا، کسی کو وہ زیادتی کرنے نہیں دوں گا. بہرحال جو بھی ہوا معذرت خواہ ہوں، مجھے نہیں معلوم کس نے کیا کیا بھائی، لیکن انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، کوشش کرتا ہوں میں. معذرت خواہ ہوں، معذرت قبول کیجیے. جی فیصل صاحب، فیصل بھائی السلام علیکم. میں تو صبح کا بولا ہی نہیں ہوں. اگر کوئی میری آواز کا ایک جملہ ریکارڈ کیا ہوا دکھا دے یا کوئی ایک ٹیکسٹ دکھا دے تو میں ذمہ دار. لیکن میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ پہلے جماعت قادیان کی طرف سے طارق چوہان صاحب نے کافی گستاخیاں کی ہیں حضرت عیسیٰ کی. پھر آپ جانتے ہیں جب حضرت عیسیٰ کی گستاخیاں کی جائیں اور جان بوجھ کے کہا جائے کہ
इनका जो पीरो मुर्शद है तारक वो साहब हजरत का ईसा मैं से। पहले फैसल साहब एक को मिनट, चंगेज बता भाई, दूं कि चंगेज जमात साहब, अहमदिया से तारक साहब का कोई चंगेज, ताल्लुक जैसे ये नहीं। चंगड़ खान को तो चंगेज चुप भाई, कराएं, ये चंगेज चंगड़ भाई, खान की दफा हम नहीं बोलते, ये चंगड़ चंगेज हमारी दफा भाई, क्यों बोलता है? प्लीज प्लीज जी, ये लेकिन जी पीर साहब, फैसल तो में चंगेज ये मैंने तो साहब आप सुबह अपने से कर ना रहा है, एक खंजीर जुमला का अदा बच्चा चंगेज किया है। साहब ये अपने बदतमीजी कर टाइम रहा पे है। बोलिए, ये बदतमीजी क्यों कर रहा है? आपको अपने टाइम पे वक्त दिया जाएगा, प्लीज जो बोलना है आप बोलेंगे, तो ऐसा बताएं। जी शुक्रिया पीर साहब। पीर साहब मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि जब हज़रत ईसा की गुस्ताखियाँ की जाती हैं और हज़रत ईसा को नौज़ुबिल्लाह नीचा दिखा के किसी और शख्सियत को ऊपर दिखाने की कोशिश की जाती है, फिर ज़ाहिर बात है मुसलमान जिस शख्सियत को ये ऊपर करने की कोशिश करते हैं उनकी किताबों में जो लिखा हुआ है वो खोल के सामने रख देते हैं मुसलमान। वो फिर इनको लगता है कि ये अब गालियाँ दे रहे हैं मुसलमान, और फिर ये जवाब में मुसलमानों को गालियाँ देते हैं। इन्होंने हमारा जो मोहतरम दोस्त यहाँ पे बैठा है मलिक इमरान, उसका एक मासूमाना सवाल था कि मिर्ज़ा साहब का बच्चा जब उनके पेट में, माँ के पेट में था, तो उसकी आवाज़ मिर्ज़ा साहब ने किधर से सुनी। बस ये उस बच्चे ने सवाल पूछा है, और उसके बाद उसकी माँ को इन्होंने इतनी गंदी गलीज गालियाँ दी हैं, खाली एक ने नहीं 3-4 कादियानियों ने। आप कहते हैं मैं उनके टेक्स्ट जो है आपको स्क्रीनशॉट सारे अपलोड करके अभी दिखा देता हूँ। और बाद में फिर ये आके आपको शिकायत लगाते हैं कि जनाब आप नहीं थे तो ये हो गया तो वो हो गया। आपके पास सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, पीर जितनी भी आपकी लाइव होती है ना, इसकी टिकटॉक खुद रिकॉर्डिंग करता है। तो अगर आप भी चेक करना चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं कि मुसलमानों ने कितनी कोई किसी को गुस्ताखी की है या गाली दी है किसी का नाम लेकर, और इन लोगों ने क्या क्या किया है। बस मैंने यही अर्ज़ करना था पीर साहब, शुक्रिया। पीर साहब इजाजत बस एक मिनट बात की, एक मिनट भाईजान, एक मिनट, मैं इंशाल्लाह आप बात करेंगे, जल्दबाजी मत कीजिए। देखिए फैसल भाई, ये बहुत आसान है, अगर कोई गुस्ताखी करता है सीधा उसको उतार दो, इसके लिए कोई ख़ास फार्मूला तजवीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। गुस्ताख को सीधा उतार दो, उसको ब्लॉक कर दो। बहरहाल जी, कौन सा बहुत बात करेंगे जी, बोलिए छोटे जी, सरकार, बोलिए। मैं बात करना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह पीर साहब, मैंने भी वही अल्फाज बोलने थे जो ताहिर हमजा साहब ने बोले हैं, लेकिन ताहिर हमजा साहब जो है वो नाम छुपा गए हैं और अल्फाज छुपा गए हैं, तो मैं वो थोड़े से बयान कर देता हूँ। नाम ज़ेरे निगरानी थे जी, आमद नज़ीर साहब की ज़ेरे निगरानी थे, और ये जो जिन्होंने लिखा हुआ है मंजी मैं मंजी, ठीक है, ये मलिक इमरान साहब, इन्होंने सॉरी मादत के साथ मेरा फोन आ गया था। ये जो मलिक इमरान साहब हैं, इन्होंने गालियां भी दी हैं, और इसके अलावा एक औरत के कहने के, ये जो जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि कहाँ से आवाजें आ रही थी, उनकी तरफ किसी गैर मर्द के लिए अल्फाज भी ऐसे यूज किए हैं उनका, यानी कह लें कि इतनी बेहुदा बात की है, मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता। तो ये जो फैज साहब कह रहे हैं ना कि नीचे किसी ने गाली लिखी, तो जब आप किसी की अकाबर के बारे में इस तरह की बातें लिखेंगे, उसको किसी गैर मर्द के साथ मनसूख करेंगे, तो फिर यही होगा, ठीक है। और दूसरा, जो फैज साहब ने अभी आपके सामने चंगेज खान साहब को गलत बात और गाली दी है, तो क्या हमें यह हक पहुंचता कि हम भी फैज साहब को वही गाली लुटा के बल्कि बढ़ा के इसके वालदैन को दें? ये नहीं ना इजाजत देंगे आप हमें। तो इसी तरह ये है कि ये जो आप पीछे से छोड़ जाते हैं बरात, इसका माहौल बिल्कुल बिल्कुल वही माहौल बन जाता है जो दूसरी बरातों पे होता है, और वही गालियां, वही बातें, कुत्ता, कमीना, कंजर, दल्ला, ये चीजें, भोसड़ी का पता नहीं, इस तरह की सरगोदे की लैंग्वेज में 5-7 गालियां जो है ना, ये अपना मलिक इमरान साहब ने यहाँ पे बैठ के तो मिर्जा साहब का नाम लेकर निकाली, नाम लेकर, ठीक है, और गाली देकर कहता मैं तो गालियां देता ही नहीं, मैं किदों आना उन्होंने वो फलाने ढींगे चिमड़े। अगर आप इस तरह की बात करेंगे और कहेंगे जी हम मुसलमान हैं और हम बड़ी इल्मी बातें करते हैं, तो फिर यही बात है, फिर इसी तरह होगा। फिर नहीं, उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ कि जैसे मैं अब कहूँ कि और ये किसी ने बिल्कुल खबीस, चंगेज खान साहब, एक मिनट, किसी ने यहाँ पे हजरत ईसा की गुस्ताखी नहीं की, नहीं की, ना किसी की गुस्ताखी तारक चौहान साहब ने किया। तारक चौहान साहब बड़े ही पुरसुकून माहौल से आमन नजीर साहब से बात करके नीचे उतर गए थे। जब ये जाहल, वो कह के उतरे थे कि जब ये जाहल बैठे हुए हैं मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा, वो नीचे उतर गए थे। और इन्होंने पीछे से ये जो काजमी साहब है खलीफा वक्त के आईडी वाले, इन्होंने रोका भी था मलिक इमरान को कि तुम गलत कर रहे हो,
ठीक है, और मलक इमरान मुसलसल गालियां निकालता रहा, झूठ ठीक मत है। बोलो। और हाँ, ते बहरहाल ये लोग पूछ लें इनसे, काजमी साहब से पूछ लें जो उन्होंने ये गालियां निकाला था। और जब ये मैं बोलूं कि मलक इमरान पैदा होने से पहले अपने हमसाये के मर्द के गोडों में था, भाई आप गाली गलौच इस्तेमाल मत कर रहे, अपनी बात करें, वो अल्फाज अदा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 1 मिनट है, बात कीजिए। चलें ठीक है, अगर वो अल्फाज यूज करने की जरूरत नहीं है तो फिर बात खत्म हो जाती है, क्योंकि मैंने तो वो अल्फाज ही बताने थे कि इस बहुत तरह की ये शुक्रिया, अल्फाज यूज बहुत फिर शुक्रिया, बहुत इसका साहब शुक्रिया, 1 मिनट हाँ। दीजिएगा जरा प्लीज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। हाफिज साहब क्या हुआ है? हाफिज भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। माजरत पीर के साहब साथ हाँ सब यहाँ पे नहीं थे, साहब आखिरी बात हो रही है। हाँ सब यहाँ पे नहीं थे, मैंने लिस्ट में चेक करता रहा था, हाँ सब यहाँ पे मौजूद नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, पीर मैंने लिस्ट में बार बार चेक करता रहा। जी हाफिज साहब। पीर साहब मैं असल में वो ड्राइव कर रहा था, इस वजह से इंटरनेट स्टेबल नहीं था, तो मैंने आपको ना इनबॉक्स में कुछ मैसेज किए, अगर फुर्सत में वो आप उन्हें देख लें तो। देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। बहुत जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, बहुत ठीक मेहरबानी। है, ठीक है भाई। जी पीर इसकानी साहब 1 मिनट चाहिए मुझे। जी प्लीज़ बात कीजिए। जी मैं अपने अहमदी भाइयों से सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ कि मैंने आपने कहा गया कि मैंने नाम छुपाए हैं, तो इसी मसलहत के तहत कि मकसद कोई गंदगी फैलाना नहीं है, मकसद कोई फसाद फैलाना नहीं है, मकसद ये है कि कोई अगर ऐसी फ़िज़ा कायम हो सकती है जिसमें हम बग़ैर गाली गलौज के, बग़ैर गंदगी के एक साफ़ सुथरे माहौल में बैठ सकें, तो वो महफ़िल वो उसके लिए जो ज़रूरी हो, जो आप ज़रूरी समझें उसे करना चाहिए। भाई बात यह है कि समझ सबको आ जाती है कि क्या माहौल हुआ होगा, उसको खुरेद कर उसको बाकायदा ज़िक्र करके अपने ज़हनी कोफ्त लेने की बात है। एक बात यह है कि मिर्ज़ा साहब को इंतहाई गंदी गालियाँ दी गई हैं, जो मिजाज है, और वही बहतान तराशी और बहाने तराशी की जाती है कि तुम्हारे इस बयान से फ़लाँ नबी की शान में गुस्ताखी नज़र आती है, लिहाजा हमें लाइसेंस मिल जाता है गाली गलौज करने का। वो पुराना तरीक़ाकार है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं अपने अहमदी भाइयों से एक हम्बल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, दरख्वास्त कर सकता हूँ कि वो कमज़ोरी का मुज़ाहरा नहीं करते हम, लेकिन सब्र का मुज़ाहरा करें। इन्नल्लाह मासाबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और ये जो ट्रेड होती है, ये सौदा होता है, ये बहुत अच्छा सौदा होता है कि अगर किसी वजह से अल्लाह आपके साथ हो सकता है तो महज लिल्लाह सब्र करना चाहिए, और कभी भी बद तहज़ीबी और गाली गलौज से हमें नहीं काम लेना चाहिए। हमें ये ज़ेब नहीं देता, हमें ये सौदा वारा नहीं खाता। गाली गलौज में जो अव्वल इनाम लेना चाहते हैं उनको वो बिला मुकाबला दे देना चाहिए। मैं अपने भाइयों से सब्र की, तहम्मुल की अपील करता हूँ। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पीसा मैं इजाजत चाहूंगा, आप किसी और को ले लें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खलीफा साहब सलाम अलैकुम। खलीफा वक्त भाई सलाम अलैकुम। खलीफा वक्त साहब मौजूद नहीं है। जी इमरान साहब सलाम अलैकुम। इमरान भाई। नहीं पीर साहब, मैं अभी जो है ना बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ क्लाइंट है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। यूसुफ साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। जी भाई। अच्छा, जिस मौजू पर बात हो रही है, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, आप शायद यहाँ मौजूद थे या नहीं थे जब आमिर नज़ीर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, बाकी दीगर दोस्त भी खलीफा वक़्त। यहाँ पे एक किताब से एक इबारत पढ़ के सुनाई गई और इससे सवाल ये किया गया कि किससे? क्या आप इस बात जी किससे सवाल किया गया? सवाल तारिक चौहान साहब से। अच्छा, तारिक चौहान साहब से सवाल हुआ था, और उनके अलावा भी कुछ दोस्त यहाँ पे मौजूद थे। तो उस पर गुफ्तगू हुई, उन्होंने बड़े अच्छे से उसका जवाब दिया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से गुफ्तगू चलती रही। किसी ने किसी को गाली नहीं दी, किसी ने किसी को कोई बुरा लफ्ज़ नहीं कहा,
اس کے بعد طارق چوہان صاحب چلے گئے اور عمران صاحب جو ہے نا وہ بار بار ایک تکرار کر رہے تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی تھی، جو بچہ بولا تو وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی. خیر یہ سوال اگر کوئی بندہ کرے، نہ تو اس کے اندر کوئی غلاظت ہے، نہ کوئی گندگی ہے، نہ کوئی ایسا لفظ ہے جس پر اعتراض کیا جائے. اس دوران ایک خارش زدہ ٹونی کتا اس پر چڑھتا ہے براڈ پر، اور آتے ہی بھائی نہیں یہ آپ نہیں کریں گے میرے روڈ پہ، پلیز. آپ میرے بھائی ہیں، آپ اپنی بات کیجئے، باقی کچھ نہیں. یوسف بھائی میں معذرت خواہ ہوں، آپ میوٹ کھولیے. نہیں میری بات سنیں. نہیں میری بات تو سنیں. پلیز مجھے کچھ نہیں سننا. میری بات تو یہ سنیں. نہیں میں نے یہ نہیں کرتا، مجھے بات تو پوری کرنے دینا. ٹھیک ہے کیجئے. اب ایک بندہ اوپر آ کر اپنے منہ سے گندگی نکالتا ہے، وہ گندگی جو مسلمان باتھ روم میں جا کے نکالتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں اگر منہ سے کرے گا تو مجھے آپ بتائیے کہ اس کے جواب میں کسی شخص نے اس کو کوئی بھی جملہ نہیں کہا، اور پھر یہاں آ کے بڑے مہذب بنتے ہیں، بڑے ہی اخلاقیات کا پتہ نہیں کہاں کا درس دیتے ہیں، اور اتنی گندگی بکتے ہیں اپنی براڈ پہ. جہاں سلم ہر بندے کی ریکارڈنگ ہر بندے کے پاس. بھائی براڈ پہ کیا ہوتا ہے دوسرا چھوڑ دیجئے پلیز. میں وہی عرض کر رہا نا. اب یہاں پر آ کر کے میری سنیں، میری بات ہونے دینا. دیکھیں پیر صاحب مجھے پھر میں آپ سے شکوہ کروں گا، مجھے بات نہیں کرنے دیں. کیجئے مکمل کیجئے. بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ ایک بڑے اچھے ماحول کے اندر، بڑے تمیز ادب کے دائرے کے اندر بات ہو رہی ہے، بات وہی ہے جو کسی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یا تو اس کو کتاب کو وہاں سے پھاڑ کے پھینک دیں، اس کو آگ لگا دیں، یا اس کے اوپر کوئی کالی سیاہی مل دیں ان الفاظات پر جو غلاظت وہاں پہ لکھی. اگر اس کو گند اور غلاظت سمجھتے ہیں تو یہاں پہ پڑھ کے سنائی جائیں گی، یا تو اس کو کالا کر دیں، اس کتاب کو، وہ ہے ہی کالی پہلے. خیر اس کے اوپر کوئی گندگی پھیر دیں، یا اس کے اوپر کوئی سیاہی مل دیں اس کے منہ کے اوپر، تو پھر تو ہمیں سمجھ آئے گی. یوسف بھائی جی بھائی ایسا نہیں ہے، یہ گفتگو کا اسٹائل نہیں ہے. اچھا چلے میں مختصر کرتا ہوں اپنی بات. میری بات مجھے بتائیے، یہ الفاظ کہنے کی کیا ضرورت تمہیں پیش آ رہی ہے؟ چلے میں مختصر وہ اپنے کتاب کے ساتھ اپنے سر پہ رکھیں، اپنے دل میں رکھیں، آپ کے بغل میں رکھیں، کچھ بھی کریں. آپ کا کیا ہے اس میں؟ میں یہ نہیں کہتا وہ کچھ بھی بھائی کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں. پلیز میرے بھائی. چلیں ٹھیک ہو گیا، میں نہیں کرتا بات. اچھی وہ بات. بات یہ ہے کہ اگر کتابیں لکھی جاتی ہیں نا پیر صاحب، تو پڑھنے کے لیے لکھی جاتی ہیں نا. ان میں سوالات بھی ہوتے ہیں، جوابات بھی ہوتے ہیں، اور اس پر بحث بھی ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، لوگ اسے اصلاح بھی لیتے ہیں اور اسے عبرت بھی لیتے ہیں جو لکھی ہوئی باتوں سے. تو اگر کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ڈسکس کرنا یا بات کرنا، تو یا تو کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یا میں اس کو آن نہیں کرتا، بات ختم ہو گئی، بھائی سائڈ پہ کرو. اگر کوئی بندہ آن بھی کرے کہ میں اس کو آن کرتا ہوں، اور پھر اس پر اعتراضات بھی اٹھائے پڑھنے والے پر، یہ ایک اتنی بددیانتی ہے کہ جب آپ ایک چیز کو اپنے لیے مقدم اور محترم اور مقدس سمجھتے ہیں، اور پھر کوئی دوسرا شخص اس کے اندر سے کچھ حصہ اس کا پڑھے، یا ساری کی ساری پڑھے، یا اس میں سے کوئی سوالات اگر ریز کرتا ہے، اس کے ذہن میں چیزیں آتے ہیں، تو پھر آپ یہ اعتراض اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ پڑھا کیوں ہے. بھائی جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ تو پڑھیں گے لوگ، آپ کسی پر پابندی تو نہیں لگا سکتے، رائٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اخلاقیات کا یا ادب کا یہاں پہ درس دیا جاتا ہے نا، تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، کسی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی شکل کو دیکھنا چاہیے. وہی جو لفظ آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا آ کے بڑے وہ تنتر خاں بن کے، تو وہ پہلے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو 2-4 دفعہ 10 دفعہ کہا کریں، پھر جرت کیا کریں کسی کے سامنے آ کے. یہاں ایسے فضول کے بھاشن نہ دیا کریں. ہو گئی آپ کی بات بھائی؟ جی پیر صاحب ہو گئی. اچھا مجھے موقع چاہیے. مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے پلیز. میرا خیال ہے آپ جی پیر صاحب آپ بات کریں. اگر یہ دو بدو اسی طرح ادھر مقابلے پہ ریبٹل آئے گا تو پھر میں بھی اس کا جواب دوں گا. پھر یہ آپ مجھے نہ اعتراض کیجیے گا کہ میں نے نہیں بات کی. اگر میرے مقابلے میں کوئی بندہ بات کرے گا تو میں اس کا جواب ضرور دوں گا. میں بات کروں گا, مجھے ٹائم دیجیے, مجھے بات کرنے دیجیے, مجھے بات کرنے دیجیے. میری بات پر کوئی بندہ بات کرے گا میں اس کا جواب ضرور دوں گا پیر صاحب. اچھا یوسف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ وہ عبارت پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی؟ جی بالکل پڑھی گئی. پڑھی گئی تو پڑھنے دے دیا گیا نا بھائی؟ نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ پڑھنے نہیں دیا گیا. اچھا لیکن آ کر یہ کہہ دینا کہ یہ گندگی ہے, وہ گندگی تو وہ کتاب کے اندر ہے, پھر اس گندگی کو صاف کیا جائے. ایک منٹ بھائی دیکھیں آپ مزید باتیں مت کریں, جتنی بات ہے آپ اتنا بات کریں.
وہ جو بھی اقتباس تھا پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی تھی بھائی؟ جی دوسرے بھائی، پڑھی گئی، میں نے عرض کیا پڑھی گئی، بالکل پڑھی اچھا گئی۔ ٹھیک ہے، اس میں جو اعتراض ہے آپ کا وہ کیا ہے ابھی بتا دیجئے۔ ہاں جی، اعتراض یہ ہے کہ اگر خلیفہ وقت صاحب شاید کہیں بزی ہیں تو وہ عبارت بھی یہاں لگ جائے، فیض نہیں بھائی یہاں لگا دیں۔ بات آپ کر رہے ہیں خلیفہ وقت، اچھا بات میں کر دیتا ہوں، میں اس کو کر دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں بات۔ جی یہ اعتراض کیا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ بات کی کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میری تو زبان یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں اس طرح کے جملے کہوں، لیکن پتہ نہیں کتنی جرت سے لوگ لکھ لیتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنگوڑے کے اندر، جھولے کے اندر بات کی، اور میرا بیٹا وہ ہے جس میں پھر دوبارہ، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھولے کے اندر ایک دفعہ بات کی بچپن میں، اور میرا بیٹا وہ ہے جس نے 2 بار میرے سے گفتگو کی ماں کے پیٹ سے، جبکہ وہ بھی ماں کے پیٹ میں آیا بھی نہیں۔ جی اعتراض اس میں تو کیا ہے؟ اس میں اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ ایک تو اس میں بہت بڑی گستاخی ہے، بہت وہ بڑی آواز شاطمیت کہاں ہے سے آئی حضرت تھی پیر عیسیٰ علیہ صاحب؟ نبی علیہ الصلوۃ اعتراض والسلام کو بھائی ایک منٹ، نیچا یوسف بھائی دکھانے کے اعتراض لیے بتائیں۔ یہ بھائی یہ کوشش کی۔ کیا ہے؟ بھائی یہ کیا تماشا ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ میری سنیں گے تو میں بتاؤں گا نا۔ سن تو رہا ہوں بھائی۔ اعتراض یہ ہے، پہلے تو یہ کسی عام سے شخص کو، کسی ایسے بندے کو جس کی مطلب حیثیت کوئی کچھ بھی حیثیت نہیں ہوتی کسی نبی کے سامنے، جی جی اس شخص کو یا اس بچے کو، اس نومولود کو جو بھی پیدا ہی نہیں ہوا، دنیا میں نہیں آیا، اس کو کسی نبی سے افضل قرار دے دینا۔ لکھا ہوا ہے افضل تھا وہ؟ پیر صاحب یہ ضروری تو نہیں لکھا ہوا، اور اس بھائی جملے سے جان پتہ نہیں میری چل رہا بات کہ اس کی نہیں افضلیت بیان کی میری جا بات رہی ہے؟ سنیے، جو چیز لکھا ہوا نہیں ہے آپ کا کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ افضل بتایا گیا؟ نہیں تو وہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کی ہے کہ ابھی وہ بچہ جس نے جو پیدا نہیں ہوا وہ 2 دفعہ بات کر رہا ہے، یہ کوئی ریکارڈ پہ ہے؟ اس کا ثبوت مل سکتا ہے؟ نہیں، لیکن دیکھیں نہیں مل سکتا تو وہ جھوٹا شخص ہے نا جس نے یہ بات لکھی ہے۔ آپ اس کو جھوٹا مانیے بس۔ میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ جھوٹا ہے نا پھر۔ ایک منٹ میرے بھائی، ٹھیک ہے انہوں نے کہا جھوٹ کہا ہے، غلط ہے، مت مانو۔ ہاں وہ جھوٹا، اچھا وہ شخص جھوٹا ہے نا جس نے یہ بات لکھی۔ بات سنیے میری بات۔ آپ بھی تو مجھے جواب دے دیجئے، میں آپ کی بات میں سن رہا ہوں میرے جواب تو دے محترم دیتا ہوں، لیکن اگر عزت آپ مآب۔ مجھے پورا جس شخص نے یہ بات لکھی ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے یا نہیں آپ کی نظر میں؟ ایک منٹ مکمل بات آپ چاہے 10 منٹ لیں سرکار، مجھے اتنا تو جواب دے دیں۔ دیکھیں آپ مجھ جس پہ شخص حملے نے یہ کر رہے بات ہیں، مجھ لکھی پہ ہے، حملہ آور کیا مت وہ ہوئیے، شخص جھوٹا حملہ آور دجال مت ہے، ہوئیے، کذاب ہے آپ کی نظر میں؟ حملہ آور مت، وہ شخص جھوٹا کذاب دجال ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہاں اپنے بیٹے کو افضل کہہ رہے ہیں، اس سے بڑا دجال کوئی نہیں۔ یہ آپ برداشت کیجئے۔ جو نہیں، میں آپ سے میں تو برداشت کر رہا ہوں، آپ مجھے کہیں جو مرضی کہیں۔ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے کسی نبی کے بارے میں کہ کسی نبی نے تو 1 دفعہ بات کی، میرے بیٹے نے ماں کے پیٹ سے 2 دفعہ بات۔ میرے پیارے بھائی، اگر آپ میری بات سنیں گے تو اچھا ہے، نہیں سنیں گے تو فضول ہے گفتگو۔ کیا خیال ہے میں آپ کے ساتھ لڑ لوں؟ لڑنا چاہتے ہیں یا بات کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ میوٹ کھولیے بھائی، آپ لڑنا چاہتے ہیں یا بات کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ بتائیے۔ میں تو آپ سے نہیں لڑ رہا، آپ تو مجھے جھوٹا دجال کذاب مجھے کہہ رہے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبوت کا دعویدار جھوٹا کذاب دجال ہے۔ میں نے تمہیں نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ میرا جملہ ہی میرے اوپر لٹایا نا آپ نے۔ میری بات تو سنیے نا بھائی، جو سنائیے۔ دیکھو جس طرح آپ کو برا لگا، آپ جو اپنی طرف سے ایک چیز سمجھ کر کہہ رہے ہیں تو ان کو برا نہیں لگے گا؟ کیوں آپ کو برا لگے، ان کو کیوں نہ لگے؟ پوچھ دیں آواز کہاں سے آئی تھی؟ پیر صاحب پلیز مجھے یہ آپ ہمارے سے لڑائی نہ کریں، خاموش، ہمیں پوچھ دیں کہ آواز کہاں سے آئی۔ خاموش رہیے، اپنے ٹائم پہ بات کیجئے۔ جب وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ میرا بیٹا افضل ہے، جب یہ نہیں لکھا ہوا تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو افضل بتا رہے ہیں؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ جب میں آپ کو جھوٹا کہوں آپ تڑپیں، جب آپ مجھے جھوٹا کہیں مجھے کوئی دکھ نہ ہو، میں آپ کو پول پیش کروں، اس کی کیا وجہ ہے بھائی؟ جو بات میں تو نہیں تڑپ رہا، مجھے آپ کیوں کہیں گے کہ میں کسی بات پہ تڑپوں؟ وہی تو بات، لیکن برا تو آپ کو لگا۔ ایک بندہ جو ہے وہ یہ لکھ رہا ہے، میری سنیں نا، آپ میری بھی سنیں۔ نہ نہیں سنوں گا، بالکل نہیں سنوں گا۔ بات یہ ہے آپ بولتے رہے، میں سنتا ہوں، آپ بولتے رہے۔ آپ کو جتنا سوال کیا جا رہا ہے اتنا جواب دے دو، بھلے آپ نہ مانیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن میں جانتا ہوں آپ کو تکلیف ہوا،
मैं जानता हूँ आपको चलें अभी तकलीफ देख लेते हैं किसको तकलीफ होती है। हाँ, अभी आप कहते हैं कि मुझे तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन हुआ भाई। इसी तरह मुझे भी तकलीफ होगी, मैं भी इंसान हूँ। जो बात है उस पे बात कीजिए। अपने तरफ से एक इल्ज़ाम लगाकर और किसी को मोरद जुर्म ठहरा कर अपने जो है सामने खड़े कर रहे हैं और कहते हैं गुस्ताखी की। मेरे मोहतरम भाई, ये इतराज़ हवा मंसूरा वाला इतराज़ है, समझ रहे हैं? इतराज़, असल इतराज़। दूसरा क्या इतराज़ है बताइए भाई। आप खुद ही बात करेंगे, आप ही फैसला करेंगे हर सवाल का और जवाब का। जो मैंने सवाल किया उसका भी आपने जवाब देना है और मेरी बात का फैसला भी आप ही ने करना है। अगर मैंने गलत जवाब दिया है, अगर बिल्कुल मैंने गलत दिया है, जवाब दिया है, बिल्कुल तो आप- बिल्कुल परले दर्जे की आपने यहाँ पे जो है ना वो मेरा ख्याल है कि नाइंसाफी की है। मुझे अब ये सवाल बताइए। मेरा है, जवाब आपने दे दिया। सवाल तो मेरा मिर्जाइयों से है, काफिरों से है। मुझे बता दीजिए मेरे भाई, जो जी भाई। चीज़ मौजूद नहीं है उस चीज़ को कहो कि ये इसका मकसद है, और फिर झूठा कज़्ज़ाब लानती दज्जाल कहना शुरू ये कर दो। ये कहाँ तक इबारत अगर पहुंचेगा? मौजूद ना हो, अगर ये इबारत मौजूद ना अगर हो मिर्जा मौजूद है, कादियानी की लिखी हुई, अगर मौजूद है कि मेरा बेटा अफजल, तो दिखाइए। फिर मैं तुम्हारे साथ अच्छा कज़्ज़ाब आप दज्जाल कहूंगा। अच्छा हर लफ्ज के ऊपर, मतलब अगर वो एक बंदा अपनी बेटे की बड़ाई बयान करने के लिए और ये जुमला ये कह रहा हो कि ये तो अजीब बात है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ के पंगूड़े में से एक दफ़ा बात की और मेरे बेटे ने माँ के पेट से 2 दफ़ा बात की। ठीक, इसका क्या मतलब है? इस तशबीह से क्या मुराद है? फैसल भाई आपको ज्यादा मालूम है तो आप आइए। चले फैसल भाई से पूछ लेते हैं, फैसल भाई से बात कर लेते हैं। जब आप देखें ना, एक वाज़ेह भाई, चीज अगर है जो आप हम ज्यादा सबको होशियार समझ आ रही है, हैं, तो आप आपको आइए। वो चीज एक समझ क्यों नहीं आ मिनट, रही? एक मैं मिनट, ये एक जानना चाह रहा हूँ पीर साहब। एक मिनट, आइए फैसल साहब आप आइए। क्या आपका इतराज है बताइए। ये मैं इतराज नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो एक चीज हम सबको नौशिस्ता दीवार साहब ने लिखा हुआ नजर आ रहा है कि एक बंदा अपनी तशबीह दे रहा है किसी अमल की हजरत ईसा के किसी मोजे के साथ। जी आपको वो नजर क्यों नहीं आ रही वो तशबीह? मुझे ये नहीं समझ आती है। मुझे नजर आ रही है जितनी बात और दूसरा ये आप इनसे पूछ के बता दें हमें कि हजरत ईसा ने जो कलाम किया था उन्होंने तो अपनी ज़बान से किया था, लोगों ने आवाज़ सुनी थी। ये जो मिर्ज़ा साहब यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं कि उनके बच्चे ने माँ के पेट से उनसे 2 दफ़ा कलाम किया, ये मेरे भाई मलिक इमरान का सवाल बिल्कुल वैलिड है कि वो आवाज़ मिर्ज़ा साहब तक कहाँ तक पहुँची, किस जगह से उनको वो आवाज़ निकली, ये पूछ के बताएं। अच्छा, आपका एतराज अब यही है ना कि वो आवाज़ कैसे आई, कैसे मालूम हुआ? मेन तो इतराज़ पीर साहब, मेन तो इतराज़ है कि जो उन्होंने मुशाबत कायम करने की कोशिश की है, क्या वो मुशाबत बनती है हज़रत ईसा के पंगूड़े से कलाम करने की और किसी बंदे के अपनी माँ के पेट से कलाम करने की? तुम्हारा इतराज़ क्या है भाईजान? ये झूठ बोला है मिर्ज़ा साहब ने, ऐसा बस कभी हो ही नहीं ये सकता तो मैं बच्चा भी अपनी कहता माँ हूँ की कि गलत बात पेट की से है। कलाम करे, ये झूठ है। ये मैं भी कहता हूँ कि गलत है। मेरा और अकीदा आपका एक ही है, मैं भी कहता हूँ। तो पीर साहब ये बात जब मैंने पूछी तो आप ऐसे ही उस वक्त जवाब दे देते कि हाँ ये उसने झूठ बोला है, उसने गलत बात की है, तो मेरा ख्याल हम इतनी लंबी चौड़ी बात ही ना होती, मैं उसी वक्त खामोश हो जाता। ना, मैं ये कहता हूँ आपको, आप कि उस शख्स को सुन तो लीजिए भाई, मेरी बात तो सुनाइए। प्यारे भाई, सुनाइए। मैं ये कहता हूँ कि आप ये कहें ये बात गलत है, ये गलत लिखी हुई है, इसकी कोई दलील नहीं, ये खामखा की बात लिखी है। मैंने यही तो बात की थी आपने हुजूर, मैंने यही तो बात आपसे दज्जाल और ना ऐसे तल्ख अल्फाज इस्तेमाल मत करें। जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है उसको तकलीफ हो, नबी अलैहिस्सलातु साहब मैंने तो नहीं कहा ना। अच्छा मैं ये कह सकता हूँ कि ये बात झूठ और ये फ्रेम है। वो आवाज कहाँ से आई? फैसल भाई सिर्फ एक मिनट, फैसल भाई जस्ट अ मिनट प्लीज। फैसल भाई मैं फिर ये कह सकता हूँ कि ये बात करने वाला झूठा। पहले फैसला कीजिए, अपने बात को कौन साबित कर सकता है वो बात करें। बात तो साबित होगी, आपने मान लिया कि वो झूठा और फ्रेबी है। नहीं, मैंने ये कहा कि आप दज्जाल कज़्ज़ाब ऐसा मत कहें, और किसी के मोहतरम वो बेटा हुआ है उसके लिए तो वो मोहतरम है ना, उसको वो अल्फाज इस्तेमाल मत करें। कहीं भाई ये बात गलत है, हम नहीं मानते। मैं उस बेटे का तो मैं उस बेटे का तो जिक्र ही नहीं कर रहा, जो बेटा हुआ या नहीं हुआ अभी बात करने वाले की मैं कर रहा हूँ, जिस शख्स ने ये बात लिखी है, अभी बात जिसने तकाबल किया है किसी नबी का। बात आप किससे कर रहे हैं? अच्छा पीर साहब एक सवाल मुझे बताइए। आप नहीं जवाब देंगे, सिर्फ सवाल करेंगे?
आप किससे बात कर रहे हैं? मुझे बताइए, सवाल तो सारे आप ही कर रहे हैं, अब भाई मेरा भी मेरे- कोई सवाल ले लें। मैंने कौन सा सवाल किया आपसे, बताइए। उस वक्त से आप ही पूछ रहे हैं, आप ये अपना बताइए, एतराज बताइए। लेकर आए हैं जिसको आप साबित नहीं कर पा रहे। फैसल साहब ज्यादा चालाक साबित बनने हो की गया ना, कोशिश आपने करते मान हैं, लिया वो भी ना। नहीं कर रहे। साबित तो हो गया, नहीं, जो दावा आपका है वो तो साबित नहीं हो रहा ना। क्या करेंगे? साबित तो हो गया ना, आपने मान लिया। हाँ, वो तकाबुल कर रहा है और वो शान बढ़ा रहा है अपनी औलाद की हजरत ईसा से। अब आपको ये तकाबुल नहीं नजर आ रहा, आपको ये चीज बुरी नहीं नजर आ रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये आपकी तरफ से एक बुहतान है, वो चीज नहीं है। 1,24,000 अगर उन्होंने अंबिया वजाहत की हो- कमो बेश दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजे। पीर साहब सवाल आपसे है, हाँ बताओ। जित अब 1,24,000 कमो वो बेश जो इबारत है वो तो हो गया ना, अंबिया। उड़ गया ना वो। नहीं वो नहीं, उसी इबारत पे ही है, उसी इबारत पे ही है ना। बात तो आप करने नहीं देते। जी जी, आप मुझे कहें, मैंने तुम्हें बात नहीं करने देनी, आपको बात नहीं करने देनी, बोल दिया। लेकिन मैं करूंगा। अच्छा, आप कीजिए, 1,00,000 फिर कीजिए। बात कर रहे हैं फिर भी कैसे कह दीजिए, ये क्या तरीका है? इसलिए भाई आप इसमें जितना भाई- मर्जी दीवारों से सील अच्छा, टक्कर मारो, 1,24,000 मैं कहता हूँ आपकी- पीर साहब, आपको सवाल तो लेना, अब आपसे एक बड़ा मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल आवाज तो भाईजान, पूछ दे, आवाज एक कहाँ बात से आई? सुनिए। भाईजान एक बात सुनिए, आप अगर गलत बयानी 1,24,000 करोगे, अंबिया तो वो गलत बात के मैं तायद नहीं करूंगा भाईजान, प्लीज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम गलत आपसे बात यही के बातें तो मुताबिक सीखते नहीं हैं, गलत बात को गलत कहना है, सही कभी को भी सही कहना है, तायद यही नहीं बात वो करूंगा। आपसे आप सीखना मेरे है। भाई हैं, आप मेरे मुहतरम हैं, मेरे सर के ताज हैं, लेकिन जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपने गलत बात नहीं करनी। जितनी इंशाल्लाह, बात है उतनी बात करनी है आपने। जो इतराज है, जो इतराज बनता है, वो इतराज आपने करनी है। इंशाल्लाह नहीं कर रहे पीर साहब, नहीं कर रहे। आप हमें अब जवाब ले दें कि क्या ये तकाबुल पेश हो रहा है हजरत ईसा के साथ या नहीं हो रहा, और अगर हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा, जो भी उसका जवाब है। आवाज कहाँ से आई? बस कौन सा सी सुराख आवाज? था जिधर कौन से सी आवाज की निकली? देखें, आप मुझे ये बता दीजिए कि ये आप कह रहे हैं कि वो कौन सा सुराख था जिससे आवाज निकल रही है। भाई वो माँ के पेट में, वो तो डायरेक्ट आप गाली दे रहे हैं। क्या आपको हया नहीं इतना? कुछ हया कीजिए। नहीं पीर साहब, कोई भाई हमें बताए ना कि वो बच्चे की आवाज जो थी वो से हाँ, आई इतना थी, कीजिए कि वो बच्चे की आवाज जो थी वो कैसे आई। हवा खारिज करने वाले सुराख से निकली थी। जरा कुछ तो किस हया सुराख से कीजिए। निकली? तुम्हारे रोड पे पीर अस्कारी साहब, तुम्हारे मुसलमान ये, भाई बैठे हुए हैं, बेल्ट है तुम्हारे और मुसलमान बहनें बैठे हुए हैं। एहतियात करता पीर हूं। साहब, ये बंदे को तो चुप कराना है, फजूल में मुझे इसका ना नहीं आप अभी यहाँ मौका पे। दें, अभी हम आपस में बात बात कर रहे हैं, करने इसको का। चुप करवाएं Please। बिला वजह बीच में मेरी थोड़ी सी टांगड़ा। बात सुन लीजिए, थोड़ी सी बात सुन लीजिए। ये आप जान जाएं, मेरा फोन घर में होता है और आप लोग, मैं इधर उधर जब जाता हूँ, आपकी बहन बेटियां मेरे वो सुन रही होती हैं। ये सुराख, वो सुराख, कुछ हया करो भाई, कुछ तो हया करो। ऐसा नहीं करते। और यहाँ आपके ब्रोड पे भी आपकी बहनें सुन रही हैं। ऐसा मत कीजिए प्लीज। जो पीर साहब रीफ्रेज करता हूँ, मैं रीफ्रेज करता हूँ। मिर्जा अच्छा, साहब आप ने मुझे बताइए, मार्च पेट के मेरा अंदर सवाल सुन मौजूद लीजिए। बच्चे की मेरा आवाज सवाल अच्छा, कैसे मेरा सुनी? सवाल अभी तक बस नहीं ये आया, बता मेरा दें। सवाल अभी तक पेंडिंग है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई मेरा सवाल कौन- तो लेने दें। अच्छा बताइए, क्या सवाल है आपका? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमो बेश 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं दुनिया के अंदर। पर नबी का तकाबल किया जा सकता है किसी आम शख्स से? नहीं किया जा सकता। अंबिया सबसे अफजलीन मखलूक हैं। सुभान अल्लाह। अगर कोई शख्स तकाबल करता है, गलत कर रहा है। गलत कर रहा है, हाँ। तो मैं अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि जब मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पंगूड़े से एक दफ़ा बात की, जबकि मेरे बेटे ने, अजीब बात है, 2 दफ़ा मेरे से बात की, ये तकाबल है यहाँ के नहीं? नाम लेकर के वो बात करें। नहीं, वो पूरी इबारत देखेंगे। अगर उस इबारत में वाक़तन इस तरह के कोई किनाया, कोई इशारतन बात मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा कि वाक़तन चलें, इबारत तकाबुल की एक है। मिनट, वैसे दो तरियाकुल कुलूब खोलिएगा, बात तो 27 सुनिए। और 28 सफ़ा। बात तो सुनिए प्यारे भाई, तरियाकुल कुलूब। मेरी मुकम्मल बात सुनिए। जी। अब हम वो मतन को देखेंगे। अल्लाह पाक ने हमें अक्ल दी है, शऊर दिया हुआ है। उस मुकम्मल इबारत से हमें मालूम हो जाएगा कि तकाबुल किया है या नहीं किया है, तब बता सकता हूँ ना भाई। अगर ठीक हो तकाबुल गया, किया खोलिए है, नहीं किया, तरियाकुल तब कुलूब बता सकता 27 और 28। हूँ। खोल लीजिए। पीर साहब को बात करने का मौका पीर साहब, दीजिए इसको तो चुप कराए ना, ये फजूल में, ये वजह- अच्छी बात नहीं ना। 2 लोग बात करते हैं, बीच में से टांग अड़ा देना, इनको तमीज ही नहीं आज तक आई यार। भाई देखें,
वो हमारा पीर साहब मेहमान अभी है। मैं बात भाई कर रहा हूँ ना, तो देखिए मैं सुनिए, फैसल भाई तो बात करें, सुनिए। हमारी बात ही कंप्लीट नहीं हुई। देखिए पीर साहब, ये यूसुफी आपके अब सामने ये देखे ना, ये बदतमीज लोग हैं, ये वो बंदा है, पीर साहब यकीन करें, ये वो बंदा है, ये बंदा खुद बगैरत कहता रहा है अहमदियों को। ये कहता दो तरह के अहमदी होते हैं, एक अहमदी इस्तेमाल कर रहे हैं आपके होते हुए, ये किस तरह की लैंग्वेज। बस खामोश खामोश ये खामोश लोग सुबह घंटों बात करते रहे, हम बोले खामोश बात में बोले थे। मेरी बात तो सुनिए प्यारे सफा नंबर बताएं, सफा नंबर भाईजान, बताएं, रूहानी बात तो खजान जल्द नंबर 27 और 28 अकुल कुलूब, भाईजान, आप 27 लोग शोर 28। शराबा करना चाहते हैं या बात करने देंगे? भाई इस तरह से मत करो, सर में दर्द मत दो प्लीज। तार साहब अपनी बात कीजिए और वो सफ़ा तैयार कीजिए, तार साहब की बात ख़त्म हो जाएगी। आप भाइयों में से कोई भी भाई उस सफ़ा को यहाँ लगा के उसको पढ़िए। जी तार साहब। जी देखें, यहाँ पे काफ़ी बातें हुई हैं और यहाँ पे मेरे लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल सूरत ये पैदा होती है कि जहाँ पर मुझे ज़ाती तौर पर गालियाँ दी गई हैं, मैं उन्हें नज़रअंदाज करता हूँ और कोई बात नहीं, और सब्र करता हूँ महज अल्लाह के लिए। हालांकि मुंह में ज़ुबान भी है और ज़ख़ीरे अल्फाज की शायद जो मेरे मुखालफीन हैं, जो मुझे मुखालिफ समझते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरे अल्फाज भी है और अदा करने के लिए क़ुव्वत गोयाई भी किसी से कम नहीं है। लेकिन उस सब के बावजूद मैं सब्र करता हूँ और अल्लाह की रज़ा पर उसका ज़िक्र नहीं करना चाहता। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि जो असूली बात होती है, जो इम्प्रेशन दिया जाता है, जो दजल फरेब वो फैलाया जाता है, किसी पर बहतान लगाया जाता है, मैं उस हवाले से अपनी भी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी किसी भी और की करता हूँ। मुझ पर ये बहतान लगाया गया कि माज़अल्लाह मैंने किसी के शान में गुस्ताखी की है। पीर अस्कानी साहब, बात यह है कि मैं आपके तवस्सुत से उनसे पूछता हूँ, कोई भी हो जो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि मैंने तौहीन की है, तो सब्र से मुझे नाम लिखा जाए फ़लाँ शख्स की, फ़लाँ रहनुमा की, फ़लाँ बुज़ुर्ग की ये तौहीन की है, ताकि मैं अपनी इस्लाह भी कर सकूं। लेकिन अगर वो साबित नहीं कर सकते और कोई ये बात बता नहीं सकते और मुझ पर या गंदे गालियां देना वो क्या होता है, इसके बारे में आप फरमा दीजिए कि मुंह पर बैठकर जो झूठ बोले उस पर अल्लाह की रहमत होती है या लानत होती है। कुरान में क्या कहा जाता है। तो ये नहीं है कि मैं किसी दबाव या कमज़ोरी की वजह से वो उनका जवाब देना पसंद नहीं करता, ना ही मैं ये है कि उनकी इल्मी जो है तासुर से मैं मरूब हुआ हूँ, बल्कि ये वाज़े कर देना चाहता हूँ तमाम अहमदी भाइयों को भी और जो गैर अहमदी मुसलमान भाई हैं उनको भी कि हम सब्र करते हैं तो महज अल्लाह की खातिर सब्र करते हैं। और इसमें ज़ातियात ये नहीं है कि ताहिर अमजद क्योंकि ज़ाती तौर पर गालियाँ दी गई हैं तो मैं भड़क जाऊँगा और हज़रत मिर्ज़ा साहब या हमारे अकाबरीन पर कोई बात की जाए तो मैं सब्र की तलकीन करता हूँ। मेरे लिए बहुत आसान ये सौदा होगा कि मुझे अगर गालियाँ दी भी जा रही हैं तो मैं उस पर सब्र करूँ और माफ़ कर दूँ। लेकिन अगर कोई बहतान लगाता है माज़अल्लाह मुझ पर कि मैंने किसी नबी की तो छोड़ें, अंबिया तो हमारे सर का ताज हैं, किसी के हज़रत मिर्ज़ा साहब के शदीद मुखालफीन में से दुश्मनों को भी मैंने गाली दी है, तो ये तासुर गलत है, वो साबित करें, वरना वो बहतान अजीम लगा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, किज़ब तोल रहे हैं। और पीर अस्कानी साहब, मैं आपसे तो रखता हूँ कि आप बताइएगा कि वो तो बहतान लगाना कितनी बुरी बात है। अगर ये सच्चे हैं तो मेरी वो तहरीर, मेरे वो अल्फाज मेरे सामने पेश किए जाएं। मैं अगर उसकी वजाहत ना कर सकूं तो मैं पेश की माजरत भी करता हूं और उसमें हर्ज नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो मुझे गालियां गलोच देकर मेरे अकाबरीन की तौहीन करके मुझ पर हावी हो सकता है, तो मेरा खुदा जानता है ये उसकी भूल है, हमाकत है, जहालत है। और मैं एक बात आखिरी करके मैं आपसे मैं चुप करूंगा कि जो दूसरों के अकाबरीन की तौहीन करता है, लानत भेजता है या कुछ करता है, खा वो कोई भी हो, वो याद रखे
کہ دوسرا بندہ اگر خاموش رہتا ہے تو اسے 1,24,000 گنا اضافے کے ساتھ اپنے اکابرین کے لیے قبول کر لے، اور مقصد یہی ہے کہ گندگی مت پھیلاؤ، یہ لوٹ کر تم پر پڑے گی اور تمہیں اس میں لت پت کر دے گی۔ میں اس بات پر قائم ہوں اور اس میں بڑے تحمل سے، عزت سے یہ کرتا ہوں کہ اس میں رعایت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو یہاں بلانے کا، بیٹھ کے اچھے انداز میں گفتگو کرنا ہے، بس دلال کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، اور نہیں کہ آپ کو بے عزت کریں، آپ کو ذلیل کریں، آپ کے اکابر کو گالی دیں، ایسا بالکل مقصد نہیں ہے۔ اگر کسی سے بھول چوک ہو جاتی ہے تھوڑا سا برداشت بھی کر لینا چاہیے، اور کوشش یہی کی جائے کہ ایسا نہ ہو، اور میں یہی کوشش کر رہا ہوں بھائی۔ جی یوسفی صاحب۔ جی بہت شکریہ پیر صاحب۔ ابھی یہ ایک پرانی کیسٹ جو ہے نا وہ تقریباً کوئی 1.5 سال سے یہی لفاظات وہ چھوڑ دیں، یہی وہ ہیں کیسٹ کو چھوڑ دیں، عبارت کو لائیے۔ جی وہی جی میں دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے گندگی کے حوالے سے، اگر تو روحانی خزائن گندگی ہے تو لا پھر حول یہ ولا قوت الا تو باللہ۔ دیکھو یہ جب بھی بات لا کرتے ہیں اسی حول طرح کی ولا بات قوت کرتے ہیں۔ الا باللہ۔ ہم اگر لا کتاب حول سے ولا پڑھ کے قوت۔ کوئی بھائی اقتباسات وہ پڑھتے ہیں۔ عبارت لائیے جس میں آپ کا اعتراض ہے میرے محترم بھائی۔ میرا لیپ ٹاپ جو ہے نا بالکل ڈیڈ ہو چکا ہے، بند ہے، اس کو چارجنگ پہ اچھا لگایا ہے۔ خلیفہ صاحب یا ڈارلنگ جی آپ کے پاس وہ ہے عبارت؟ کون سی عبارت کی بات کر رہے ہیں؟ یوسفی بھائی بتائیے۔ سر تریاق القلوب 27-28 پیج آ رہی تھا۔ ہے ایک منٹ آ رہی ہے یوسف بھائی، ایک منٹ دے دے، ابھی نکالتا۔ یہ بڑے صوفے پہ آ جائیں آپ۔ اچھا ایک اور بات تھی، صرف پوچھنی تھی، ضیاء بھائی سے پوچھنی ہے اگر مجھے اجازت دے تو، ہاں کہ بالکل آپ کو قرآن میں اجازت جو ہے۔ آیا ہے اپنا ضیاء رسول بھائی، قرآن میں جو اللہ پہ جھوٹوں کی لعنت والی آیت ہے وہ کیا ہے بلا؟ جھوٹوں پہ لعنت والی؟ لعنت اللہ علی الکاذبین یا لعنت اللہ علی لعنت اللہ علی الکاذبین، زبر کے ساتھ۔ طلّہ ہے بھی ہے اور طلّہ زبر ہے کے بھی ہے۔ ساتھ وہ لعنت اللہ علی الکاذبین نہیں، طلّہ نہیں ہے، کاذبین کے لعنت ساتھ اللہ علی لعنت اللہ الکاذبین نہیں ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے، نہیں ہے، یہ ہے۔ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص لعنت اللہ علی الکاذبین لکھے تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ کہ وہ قرآن کی آیت ریفر کر رہا ہے؟ ایسا ہوگا؟ نہیں نہیں، لازم نہیں آتا۔ جی جی، کیونکہ قرآن پاک کی آیت میں لعنت اللہ ہے، لیکن اگر ویسے وہ چونکہ عربی گرامر کے لحاظ سے پیچھے جو چل رہی ہے عبارت اس کے حساب سے وہاں لعنت اللہ ہی بنتا تھا، پیش نہیں آ سکتی تھی، لیکن اگر صرف آپ خالی اپنی طرف سے کہیں گے تو پھر آپ لعنت اللہ پڑھیں گے، لیکن لعنت اللہ پڑھا جائے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اوکے اوکے، بس یہی پوچھنا تھا، شکریہ۔ بہت شکریہ۔ پیر صاحب یہ جماعت احمدیہ کے نیچے گالی باز نیچے گالیاں لکھ رہے ہیں، ذرا ان پر ذرا توجہ کیجیے۔ وہ جو طالب ہے اس کو پیش کرنے دیجیے، مجھے میوٹ کرنا نہیں آتا، اگر جو ساتھی میوٹ کر سکتے ہیں اس کو میوٹ کیجیے۔ اچھا میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ ان کی منافقت ہاں مجھے موڈریٹر بنائے، میں ان کو میوٹ کرتا ہوں۔ وہ نہیں نظر آئیں گی، اگر احمدی کا بھی لکھ دے تو وہ بھی ان کو نظر آ جائے گی۔ بس سارے مرزائی اب یہ تو بات بھائی پلیز پلیز پلیز۔ یار پیج نمبر ڈائریکٹ لے لینا، ہمیں نذیر بھائی کو میسج کر کے پوچھ لیں، ڈائریکٹ اس پیج پہ چلے جاتے ہیں۔ یار یہ سائڈوں پہ پیج نمبر لکھے ہوتے ہیں اس کے، اپنی کتاب کے بھی، تریاق القلوب ہے یہ، اس کا 67 پہ آپ جائیں گے، سائڈ پہ اس کے پیج نمبر لکھے ہوتے ہیں۔ ایک منٹ میں ہمیں نذیر صاحب کو شاید کال کرتا ہوں۔ منجی بھائی مصروف ہیں، ہمارے محترم وکیل صاحب موجود ہیں، میں منجی صاحب آپ اگر مصروف نہیں بھی ہیں میں آپ کو اتار رہا ہوں اور جاوید صاحب کو لے رہا ہوں۔ بہت شکریہ، میں ناراض نہیں ہونا۔ اچھا پیر اسکانی بھائی ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے جی پوچھیے۔ کہ اگر براڈ پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص کو یا سب کو خارش زدہ کہا جائے، خارش زدہ کتا کہا جائے تو وہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ بالکل غلط۔
वो बात की बिल्कुल जाए गलत होगा, नाजायज जिससे होगा। सामने वाले आदमी को तकलीफ ना हो और तैश में ना आए। इंसान है, तैश में आ सकता है। अच्छा मेरा आपकी सफ़ा नंबर गैर-मौजूदगी 270 में हैं आप आपकी अपना काज़मी गैर-मौजूदगी भाई। में आप ये बैठ के ब्रॉड पे मैं एक बोल मिनट रहा यार प्लीज, एक मिनट खामोश रहो, जरा काम की एक बात मिनट करें तो। चंगेज, तो काज़मी एक भाई मिनट सफ़ा चंगेज नंबर खान भाई, 270 है, जरा आप निकालिएगा। जी रूहानी राजा साहब जिल्द नंबर 15 का। राजा जावेद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम पीर साहब, बहुत फिर शुक्रिया। साहब मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, एक मिनट के लिए रुक जाएं। हाँ मैं मैं सलाम ये तो ले पूछ लूँ रहा अपने हूँ। बड़े भाई से। राजा हाँ भाई जी, हाँ जी, ले खैरियत है? लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। नहीं आप इल्मी तौर पर बड़े हैं। 227 क्या बोला है नंबर, बताइएगा दोबारा जरा। 217 217। 217। अच्छा जितनी मेरे में तो पीरस खानी भाई, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि राजा आपकी साहब गैर क्या मौजूदगी कह में रहे जब हैं? पिछली दफा ब्रॉड आपकी एक थी। मिनट भाईजान, एक मिनट। ओके ओके। राजा साहब मैं ये कह रहा हूँ जितनी देर में वो सफ़ा निकालते हैं, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। कीजिए, आप कीजिए। नहीं 217 आप खलीफा वक्त भाई निकालें, मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मैं एड्रेस कर रहा हूँ जी अपने मुसलमान भाइयों को। मैंने काफ़ी देर से बात सुनी है पीर साहब की, और जो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है वो ये है कि जब भी हम एड्रेस करते हैं अपने मुखालफिन को या जमात वाले लोगों को, तो ये जो अरूफ का इस्तेमाल होता है, मेरे ख्याल में पीर साहब को इस पर एतराज़ है। और चूँकि बात पीर साहब आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो एंगेजमेंट का सिलसिला है इसको जारी रखना चाहते हैं, इसलिए मेरा ख्याल है पीर साहब का यही मौक़िफ़ होता है कि जो भी आप अल्फाज इस्तेमाल करें उनको सोचें समझें, उसके बाद ताकि दूसरा साइड जो है वो उसको उसकी कोई दिलज़ारी ना हो। तो मेरे ख्याल में इस बात का ख्याल रखें तो हमारी बातें जो है वो आगे भी बढ़ेंगी और गलतफहमियाँ भी पैदा नहीं होंगी। बस इतनी सी बात है। बहुत शुक्रिया। और मुमकिन है कि किसी को आपकी बात समझ भी आ जाए भाई। नहीं मैंने बस क्लैरिटी देनी थी थोड़ी सी, यही। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके पास अल्लाह ने जो सलाहियत दी है उससे शायद किसी को फ़ायदा हो, है कि नहीं? क्योंकि वो बात असल में यूँ है, जब आप सवाल करते हैं तो हमारे साइड ये समझती है कि शायद आप कोई इनको खुलकर बात नहीं करने दे रहे। मेरा ख्याल में आपका इतना ये पीर साहब जरा बड़ी करें मेरी स्क्रीन। ज़्यादा बड़ा करें, ठीक है, मेरी इतनी बात थी, ठीक है। क्या बड़े मैं बड़ा करूँ, अल्लाह इनको बड़ा करे। जी ज़िया साहब, ज़िया साहब ये थोड़ा पीछे ले जाएं, थोड़ा पीछे ले जाएं, थोड़ा मुकम्मल आना चाहिए। मुकम्मल आ रहा है जी, पेज कहीं से भी कटा हुआ नहीं है। थोड़ा पीछे करिए इसको, थोड़ा सा पीछे नहीं होता पीर साहब। एक मिनट में नहीं, पेज फुल है, कटा हुआ नहीं है, पेज फुल है, कटा हुआ नहीं है। ठीक है, मैं तस्वीर ले लूँ, एक मिनट तस्वीर ले लूँ। हाँ अब एक मिनट मुझे दीजिए, इसको अभी बड़ा करके यूँ करके, यूँ हो गया, कहाँ चला गया ये? पटा हुआ नहीं है, कटा हुआ नहीं है, पटा भी नहीं, कटा भी नहीं। अब इसको बड़ा करने के लिए बहुत बड़ी साइंस तो चाहिए नहीं। ये यूँ करो, यूँ चुफ बड़ा हो जाओ। ये देखो बड़ा हो गया जी, पढ़िए। अच्छा पीर साहब, नीचे आमिर नज़ीर साहब हैं, अगर वो उनके पास कोई वक्त है तो उनको ले लें जरा कॉल में। अगर आप उतरना चाहते हैं मैं उतर जाऊंगा पीर साहब, मुझे उतार। ना एक जगह ना कभी भी नहीं। अच्छा चलो, एक जगह खाली भी पड़ी है, वैसे खाली पड़ी हुई मैं भी ले लेता हूँ आमिर नज़ीर साहब को। एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए, कहाँ है आमिर नज़ीर साहब? हाँ ये कॉल नहीं डाली है। आइए आमिर नज़ीर साहब, खुश आमदीद है आपको भाई। आइए आइए आइए, पहुँचे नहीं पहुँचे जी, पहुँच गए जी। पढ़िए भाई इबारत को, पढ़िए, मैं ज़रा उसको अपने सामने पढ़िए भाई इबारत को। कौन पढ़ रहा है भाई? कहाँ चले गए जी मैं पढ़ूँ जी? जी मैंने पढ़नी, किसने पढ़नी? नहीं जिसका अच्छा जी, अपने एक मिनट और फिर जब डार्लिंग
डार्लिंग जी इतराज आपको याद होना चाहिए, क्या इतराज था? जी जी, लड़के ने पेट में बातें की हैं जी। ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ पंगूड़े में बातें की हैं, मेरे बेटे ने पेट में बातें की। इतराज ये नहीं है, इतराज ये नहीं है, इतराज ये है कि अपने बेटे को हजरत ईसा से अफजल बताया है, ये है इतराज, ये आपके जहन में रहे। यही एतराज है जो ये बात हो रही थी कि तकाबुल किया, तकाबुल किया, तकाबुल तकाबुल में अफजल बताया। तकाबुल किया जी। तकाबुल तकाबुल में अफजल अफजल आप खुद निकाल लीजिएगा पीर साहब, ये अफजल बनता है या नहीं बनता, आपने बाद में नहीं मैं गलत बात नहीं, लफ्ज उन्होंने तकाबुल कहा है या अफजल कहा है? तकाबुल से क्या मुराद है? तकाबुल से जरूर मुराद बता दीजिए। भाई आप जो मर्जी मुराद ले लेना, तकाबुल से मुराद ये है कि मुवाजना किया है। मुआजना किस में किया है, किस में मुआजना किया है? मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपने बेटे का मुवाजना अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से किया। क्या मतलब मुआजना से, क्या मतलब? वो आप खुद देख लें कि क्या मतलब है, वही तो आप पूछ रहे हैं इबारत तो पढ़ने दें भाई, वही तो आप पूछ रहे हैं ना यूसुफ भाई। एक गैर नबी का तकाबुल, एक गैर नबी का तकाबुल नबी से किया जा रहा है, ये एतराज है। एक मिनट भाई, आपके एतराज और है और यूसुफी साहब का एतराज और है, मंजी साहब का यूसुफी साहब क्या एतराज है बताएं आप। मेरा यही एतराज़ है, मैंने पीर साहब से ये कहा था कि एक शख्स ने अपनी इबारत लिखी है जिसका तकाबल किया है किसी अंबिया से, और फिर मैंने आपसे ये सवाल भी पूछा कि 1,24,000 पैगंबरों का तकाबल किसी से किया जा सकता है, आपने कहा नहीं किया जा सकता। हाँ जी, इस इबारत आपने कहा ये गलत है। एक मिनट, यानी बराबरी की है, अपने बेटे की बराबरी की है, ये बताइए। आप पीर साहब आप बराबरी कहाँ से लेंगे, आप कहाँ से लेंगे बराबरी? आप क्यों पीर साहब जब आपसे पूछा था, मेरे सामने यूसुफी भाई ने पूछा कि क्या है 1,24,000 पैगंबरों में से सब का, जी बता रहे, आप सुनेंगे तो फिर ना। आपसे पूछा जब यूसुफी भाई ने कि 1,24,000 पैगंबरों में से किसी का तकाबुल गैर नबी से किया जा सकता है, आपने कहा नहीं। इन्होंने कहा अगर कोई करे, आपने कहा गलत है। डार्लिंग रिकॉर्डिंग निकाल लें अगर ये बात नहीं है तो। डार्लिंग मेरे डार्लिंग भाई, बात यह है कि अपना इतराज मुकम्मल मुझे बताइए कि क्या है, फिर हम इबारत को देखेंगे। अपने इतराज जी यूसुफी साहब बताएं। जी मैं अब इतराज को सुन लीजिए। सवाल तो पहले मैं कर चुका हूँ जिसका आपने जवाब दिया कि गैर नबी का तकाबुल नहीं किया। इतराज बता दीजिए। बोल के बताऊंगा या खामोश होके बताऊं? बोल के बताइए। तो मुझे फिर बोलने दीजिए ना प्लीज। डार्लिंग नाम नहीं है, डेरिंग नाम है। डार्लिंग बुरा नाम है, आप बार बार बुला रहे हैं। डेरिंग। अच्छा ठीक है जी यूसुफ साहब। मिर्जा साहब ने इस इबारत के एतराज सुन लीजिए। मिर्जा साहब ने इस इबारत के अंदर अपने उस बेटे का तकाबुल नबी से किया है जो कि बेटा अभी माँ के पेट में है या कहीं और है, अभी वो पेट तक भी शायद ना पहुंचा हो, राइट। अब मुझे आप ये बता दीजिए क्या ऐसी इबारत क्या है? तकाबुल से मुराद आपका क्या है? अफजल तकाबुल से मुराद बराबरी वो तो इबारत जब पढ़ेंगे तो फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे ना, ये इबारत क्यों है, ये इसकी वजह क्या है? इतराज अपना नहीं बता पा रहे हैं। मुझे इतराज है कि बता तो दिया कि तकाबुल किया, क्यों किया गैर नबी का तकाबुल नबी से? किसी गैर नबी का नबी के साथ क्या है? बराबरी की अफजल बताया। ये सवाल बाद में निकलेगा ना किसी, अगर आपने जवाब देना तो आप जवाब फिर दीजिएगा ना। आपके पास इतराज नहीं है? इतराज कर तो दिया। ऐसे खाम क्या तकाबुल का मतलब क्या है? बराबर